Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। A warm welcome, Dhirendra. थैंक यू, धन्यवाद आपका। और अब पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman asserts India has zero probability of going into recession. Foreign investors pump in nearly 11,000 crore into the Indian equity markets in just 4 sessions in May. And Bank of India's Q4 net profit more than doubles to 1,388 crore rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत के मंदी में जाने की कोई आशंका नहीं है। विदेशी निवेशकों ने मई के पहले 4 कारोबारी सत्रों में भारत के इक्विटी बाजारों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और बैंक ऑफ इंडिया का चौथा तिमाही का शुद्ध लाभ 2 गुने से भी अधिक होकर 1,388 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और आज की पहली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर हैं, लेकिन भारत के मंदी में जाने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमती सीतारमण ने कल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि इसके बावजूद भारत आत्मसंतोष नहीं कर सकता, क्योंकि देश ने वर्ष 2047 तक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 2019 में 4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। We have a first caller online with us from Mumbai. Sanjay, a warm welcome. Please go ahead and ask your question. Sir, I have invested in PGIM India Mid Cap Opportunities Fund. After it got a 5-star rating from Value Research, but after that its performance is decreasing. Since last 1 year it is almost in bottom quartile. So what is the cause of its underperformance? Would I hold it or exit it? It was a good fund and it did well in a fairly consistent manner. But generally the mid cap and the small cap have not done well. And I would say that, it is managed in the same manner as it was. I still have great belief in the way the fund is managed. I would say that give it some more time. Okay. Dhiren, there's this question that has come up. What will be the tax implications of gifting
equity shares with consideration and without consideration to my granddaughter. And this has come from Naidu, Mr. Naidu from Chennai. The gift tax rules are pretty straightforward. If it's going to a blood relations, it's fairly straightforward. Only when it is not going directly to the blood relation that, it is subject to gift tax. Or the other person is liable to pay the capital gains tax on the investment or the gift tax applicable to that. So, and there are two ways of doing it. One is that your grandchildren could be your nominee, and the other way of doing it is that you invest along with them. You invest for them when they are minor, and when they become major, they acquire the ownership of that. So if I actually invest for my grandchild and while he's 5-year-old or when he's born, and the investment is made in his name, and I remain the guardian of that, or the parents can be the guardian of that. So that is pretty straightforward. And the grandchild becomes the owner of that when he attains majority. Okay. और दिल्ली से हमारे श्रोता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं पूछ रहा था कि एसबीआई के फोकस्ड इक्विटी फंड में यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अपना टाइम होरिजन कितने साल का रखना चाहिए, कितने साल बाद हम एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं इस फंड से। थैंक यू सर। बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद आपको 10 साल 7 साल में करनी चाहिए, पर कम से कम 5 साल का नजरिया रखिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल से कम समय के लिए आमतौर पे आपको किसी भी तरह के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Okay, Dhiren, this question regarding investment directly in stocks. Should one opt for actively managed equity mutual funds or take the index fund route? What is your view? If you are actually holding your investment to ask me or anyone and do anything, doesn't matter. Because the difference between an index fund and an active fund is uncertain. In 5 years' time, you will have something. If you start investing regularly, you will accumulate a small sum through a small sum into something meaningful, either equity or active fund. My sense is that, if you can, equity funds, if it becomes a decision leading to a kind of decision making paralysis, then start with an index fund. You don't have to apply your mind, just choose one. Guaranteed you will match the index, low expenses. But if you can, but I'm still optimistic. I don't think that the days of actively managed funds are over. If you can choose a reasonable fund, I'm not saying the exceptional fund because choosing the best fund is difficult. But if you are able to avoid the duds based on behavior, not on performance, the funds which have not done very well over the last 5, 7, 10 years, the ones which actually get onto the top or at the bottom. If any investor is generally able to avoid the sector and the thematic fund and the relatively poor performing long-term poorly performing equity fund, you might end up beating the index by a modest margin, which in the long run will become very meaningful. Okay. And if I'm a new investor, what is the best way to invest in equities? Because this is something people keep asking us, what is the modus operandi that they should follow so that they can gain out of equities? The point is the same, that everybody is being told or learned and understood or beginning to understand that you have to invest in stocks, a bunch of equities for the long term. How to go about doing it? You have these 3-4 ways of going about it. One is to buy shares directly. But buying shares directly is little tricky in a sense that you have to build a portfolio because you can't be sure of all that you're doing. And one is bound to go wrong with some of them. So diversification is key. Then time and inclination. If you should have the resources, skills.
and also the time to understand, because it simply takes more time to study, learn, and then invest. Equity investing is not a speculative activity that you can invest randomly. It's hard work. So that's one. That's second. Third is temperament. You will choose a great company. You will build a great portfolio, but still market will go mad at some periodicity, and you can't help it. No great investor can do anything about it. That is the time when you need the temperament. All these things make equity investing directly a very tricky thing. Not only that, there is a big environmental risk. When you go and invest in equity, you are actually listening to all kind of stories of speculators that he did this yesterday, somebody did something for 5 days. And this is a long-term endeavor. Choosing a company, investing and watching it grow, watching it being on track, watching it do well steadily over a period of time. And many good companies don't do well in the market for a brief period or sometimes for a longer period. And weird things happen in the market in terms of outlook, the commentary. And it's a noisy place. Everybody is giving a running commentary on all the leading stocks all the time. And to remain insulated from that and keep shut from that and not getting into it. So this is one. Second is, you don't know anything, start with an index fund. I think the best vehicle for any new investor is to start with an aggressive hybrid fund. Why I say so? And even you don't have to necessarily choose the best fund, because I also don't know which one is going to be the best fund after you have invested or after you start investing. These funds are very good, very well suited for people getting started, because they have the shock absorbers built into it, which new investors need. They have 25% into fixed income. They don't crumble when the market falls. They are steadily able to ride the market. And once you have done this for 2-3 years, you get used to the market, acclimatizing yourself to the market. They are the best vehicle. Once you are on to these for 2-3 years, then maybe consider an all-equity, well-diversified fund, a fund which can invest all over. The fund manager is in the job of choosing one. And there I find that, if you look at the top 25% of the long-term, well-performing funds, they beat the index, and that should be the endeavor. And if you're not sure of being able to do that, choose an index fund. You will be able to get 70-80% of the market upside anyway. और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता राजवंत जुड़ चुके हैं। राजवंत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। बोलते हैं कि होटल शेयर होगा कि नहीं। क्या कह रहे हैं आप? होटल शेयर्स? हम शेयर्स के बारे में बात नहीं करते हैं इस प्रोग्राम में। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अगर हम जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स लें और उस तरह का कोई हम म्यूचुअल फंड चूज करना चाहें, तो धीरेन जी आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए? नहीं, आप जब म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो एक तरह से आप बना बनाए पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। और जो मैं अभी पिछले सवाल के संदर्भ में आपको जवाब दे रहा था, वो एक तरह से पोर्टफोलियो है। अगर आप 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं तो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपका पोर्टफोलियो है। जब आप 25,000 रुपये लगाने लगे तो कोशिश करिए कि ये पैसा आपका एक में नहीं लगा रहे, 2 में लगा रहे। और जब ये बढ़ करके सब पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होता हुआ 2, 4, 5 साल में अगर ये 10 लाख रुपए का हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि ये सारा पैसा 3-4 फंड में लगा हुआ। उसका कारण क्या है कि कई बार फंड मैनेजर भी कुछ फंड अच्छा करते हैं, कुछ फंड बुरा करते हैं, और दोनों ही फंड मैनेजर अच्छा करेंगे, लेकिन किसी समय कोई बुरा करेगा, किसी समय कोई अच्छा करेगा। तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन कई लेवल पे होता है। आप अलग अलग सेक्टर्स में लगा रहे हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस में लगा रहे हैं। जब मैं बता रहा था कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड में लगाइए, तो 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा होता है, बॉन्ड्स में लगा होता है, और 3/4 शेयर्स में लगा रहता है। और इस तरह का अगर आप 2-3 फंड चुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि इससे मिलने वाला सारा रिटर्न 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगे रहेगा, लेकिन इसका सारे पैसे का ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होगा।
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि डेट से मिलने वाला रिटर्न जो कि आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है वो घट करके 10% हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि हमारे टैक्स के जो नियम है वो इक्विटी डिफाइन करते हैं कि अगर आपका पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में 65% से ज्यादा इक्विटी में लगा हो तो उसको इक्विटी माना जाएगा। तो 1/4 पैसा लगने के बावजूद ये इक्विटी माना जाता है, जहां पे 10% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म गेन्स लगता है। और तो एक फंड से भी आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका बढ़ता जाए आप इसको स्प्रेड कीजिए दूसरे मैनेजर्स के स्किल्स पे, ताकि अगर कभी कोई फंड मैनेजर 2-4 साल तक अगर अच्छा नहीं भी करे, अच्छा आपने जब किया था तब वो अच्छा था, लेकिन अगर 1-2 साल उसका बुरा समय आता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो पे उसका असर नहीं है। और ये तब कीजिए जब पैसा आपका थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर 5,000 रुपए को अगर आप 1,250 रुपए 4 फंड में लगाएंगे तो ये बड़े कम रकम के लिए आपको बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी नियम है जिनका अगर आप पालन करते हैं, और ये काफी कॉमन सेंसिकल नियम है, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक या अरिथमेटिक या बहुत डीप एनालिसिस के आधार पे नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है कि ये बाजार साइक्लिकल है, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस साइक्लिकल है, अलग अलग एसेट क्लास का परफॉर्मेंस साइक्लिकल है। इसलिए अपना पैसा फैलाइए, लेकिन इतना मत फैलाइए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। We have from Delhi Jagmal. A warm welcome, Jagmal. Please ask your question. नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि हमें अपने फोलियो में जी जॉइंट होल्डर बनाना बेटर है या नॉमिनी, जिसको हम अपनी एब्सेंस में वो अपने एसेट्स का ओनर देना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे नहीं रहने के बाद नॉमिनी को वो रिडीम करने पड़ेंगे या उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे जी। और तीसरा एक पॉइंट सर ये मैं पूछा था, मैंने पिछले बार बात किया था तो आपने किया था इन्वेस्ट को नैस्डैक में जो इन्वेस्ट किया है, तो हमने तो पिछले बजट में किया है 31 मार्च से पहले, तो हमारे लिए तो कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी ना? जी हाँ, आपके लिए कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। आपके लिए वो जो ग्रैंडफादरिंग का कॉन्सेप्ट है कि 31 मार्च तक लगा हुआ सारा पैसा उस पर अभी भी इंडेक्सेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, उतने सारे निवेश पे जो कि 31 मार्च तक हो चुका है और वो जारी रहेगा। नॉमिनी और जॉइंट होल्डर का अंतर ये है कि जॉइंट होल्डर नेचुरली हकदार बन जाते हैं, वो नॉमिनी नहीं है, वो ओनर है अभी भी। और आप एक व्यक्ति के नहीं होने पे दूसरा व्यक्ति पूरा ओनर हो जाता है। दूसरा कि नॉमिनी को क्या ये रिडीम करके लगाना पड़ता है? नहीं, नॉमिनेशन जो है ये नॉमिनी को उस एसेट को मैनेज करने का राइट देता है, और जो उसका हकदार बनता है वो आपके विल से होता है। एक कागज पे अपना विल जरूर लिखिए, लेकिन अगर विल नहीं है तो नॉमिनी को पार्शियली मान लिया जाता है कि वो विल है, कि क्योंकि वो मैनेज करने वाला वो उसका मैनेजर बन जाता है, वो उसका उस एसेट का। और दूसरा, अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता है तो वो मैनेजिंग ओनर रह जाता है। तो ये मान के चलिए। तो और नॉमिनी के नाम से वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप एक कागजी कार्रवाई से कि वो उसका सक्सेसर है। और नोएडा से हमारे श्रोता RM माथुर जी हमसे जुड़ गए हैं। माथुर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद। 2021 में PGIM का फ्लैक्सी कैप लिया था 1,70,000 में, अभी वो 14,000 का लॉस दिखा रहा है, क्या करें उसमें? ये पूरी फंड कंपनी एक साइक्लिकल अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। Dhiren, what is your view on the contra strategy where one is exposed to businesses that are currently not in favor but are expected to do well in the medium to long run, or those businesses where the market is underestimating the long-term growth potential? Should one get into contra strategy like this? No. That is why you need to diversify. That is why you need to give it to an active fund. If not an active fund, that is at least
spread your money by investing in an index fund or at least 10-15 companies. Some of those companies might be, but if something is out of favor, the point is that if it turns out to be true, all your hypothesis that it is out of favor temporarily and the long term is bright, then you'll be a big beneficiary. But most of the time, or many a time, if something is out of favor, it is out of favor for a reason. And market generally is factoring those things. For example, if in COVID, many stocks, many companies which were shut down for a brief period, everybody knew that they had assets, they had a great name, they had great service standard. Look at Indigo, Interglobe Airline, or something like PVR, Inox. People stopped going to movie hall, and they were unlikely to. And there was a time when we didn't know when people will be back in the cinema hall. And they have made a comeback. They struggled. And it was actually a back-breaking thing for these businesses. Both the big two largest businesses suffered so much that they had to marry to survive or to become meaningful in a presence in a market where. And now the merged entity. So that's the largest cinema screening company in the country. And that was the time when we started thinking that, is it also the time when people will stop going to cinema hall altogether? Because we were getting used to OTT as well. This is a huge behavioral change. But, in a country like India where cinema, movie, so there's a lot of thinking. To and for, and things may work out, and the apprehension is generally for a reason. But there are occasions, there are times when there are some tactical short-term reasons. So you have to be extremely judgmental about it. So it's a tricky thing. It requires deep thinking and also being right. And also being right while most others are not right. That turns out to be extremely profitable. If you turn out to be right while most others were thinking otherwise, that is what makes Warren Buffett what he is. Okay. और दिल्ली से हमारे श्रोता प्रेमचंद लाइन पे हैं। प्रेमचंद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में पैसा लगाना किसमें आसान है? क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले के पास जाते हैं बैंक के थ्रू, तो वहाँ काम नहीं हो पाता। तो इसमें बेनिफिट हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में क्यों ना लगाएं? इसके कंपेयर करके थोड़ा बताएंगे। ये म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना आसान हो गया, उतना ही आसान हो गया जितना शेयर मार्केट में लगाना हो पाया है। और वो इसलिए हो पाया है, ये इसलिए हो। Sorry, Dhiren, carry on. जी। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा लगाना इसलिए आसान हो पाया है क्योंकि ये जो डिजिटल प्रोसेस है, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है, अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आप बैंक में जब जाते हैं तो आपकी उम्मीद ये होती है कि कोई बैंकर आपको बताएगा कि आपको कहाँ लगाना चाहिए, आपके लिए क्या उम्मीद है। पर अगर इस चीज का निर्धारण आप खुद ही कर पाते हैं पढ़ाई करके, समझ करके, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा पाना आपके लिए बिना किसी के पास गए हुए संभव है। गए हुए बिना नहीं किसी के पास गए हुए, बल्कि सस्ते तरीके से सारे म्यूचुअल फंड का जो है ये आपको दो फॉर्मेट में उपलब्ध है। रेगुलर प्लान जो कि आप किसी ब्रोकर, एजेंट या बैंक के जरिए आप खरीदते हैं, उनका खर्चा अगर 1.5% है, 1.25% है या 2% सालाना है, तो सालाना खर्चा आपके एनएवी से काटा जाता है। रोज रोज कटता है इसलिए आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंस रेशियो है, यही अंतर है, यही फंड कंपनी चार्ज करती है डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए और आपका पैसा मैनेज करने के लिए। जब आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगाते हैं तो करीब करीब इसका खर्च आधा है, और तो आपका खर्च कम होता है, आपका फायदा ज्यादा होता है। और इसमें निवेश करना, अगर आप चुनाव खुद कर पाए तो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में लगा पाना बिल्कुल बराबर है। अंतर केवल ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका 5,000 रुपया 20, 25, 40 कंपनियों के शेयर में लग जाता है, और उस पर नजर रखने के लिए एक फंड मैनेजर है। रोज इसका एनएवी कैलकुलेट होता है, रोज आपको पता चलता है आपका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा घटा। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधे तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ भी निवेश करना बहुत आसान हो गया है। अब बहुत सारे ब्रोकर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वहां पे भी सुबह से शाम तक बाजार खुलता है, आप जब चाहे खरीदें, जब चाहे बेच दें। लेकिन वहां पे
चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना पड़ेगा जिससे आपका मेजोरिटी गोल हो जाएगा। आपके लिए ये भी संभव है कि आप 5,000 रुपये महीने का 500 रुपये महीने से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक में आपको ये चुनाव खुद करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई आपको खुद करना पड़ेगा, नजर बनाए रखना पड़ेगा, क्या लगाए क्या नहीं लगाए और क्या कब बदले, ये सब कुछ आपके लिए फंड मैनेजर कर रहा होगा एक म्यूचुअल फंड में। और दोनों में ही लगाना इस डिजिटल प्रोसेस में काफी आसान हो गया है। इसके लिए आपके पास जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो कि इसको आसान करती है वो है स्मार्टफोन और डेटा कनेक्टिविटी। ये दोनों चीजें काफी जादुई अंतर ला पाई हैं आपके निवेश करने के तरीके में। Joining us now is Varun from Delhi. Varun, we welcome you. Please ask your question. सर गुड इवनिंग। Good evening. मुझे पूछना है, जो पहले जैसे हम नैस्डैक फंड में फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते थे तो एज ए इक्विटी नहीं किया जाता था, मगर डेप्थ फंड जैसा उसको ट्रेड करते थे, मगर अब सर उसको तो नहीं मिलेगा वो बेनिफिट। तो ऐसा कोई फंड है जो नैस्डैक में डायरेक्ट हम इक्विटी जैसा इन्वेस्ट कर सके, ऐसा कुछ फंड है क्या? और दूसरा मेरा सवाल है सर, जो हमारा डेप्थ फंड है, पहले जो हमें इंडेक्शन का बेनिफिट मिलते थे, इस तरह का कोई अब हो चाहे इक्विटी फंड मगर कम रिस्क वाला, ऐसा कोई फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? थैंक यू। अभी भी नैस्डैक 100 फंड में निवेश करना संभव है। केवल एक अंतर आया है कि अब आपको इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, खासकर 1 अप्रैल से नए इन्वेस्टमेंट से। पुराना जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उससे अभी भी ये जारी है। और अभी भी बहुत सारे ओपन एंड फंड हैं जिसमें कि आप नैस्डैक 100 के ओपन एंड फंड, नवी का ओपन एंड फंड है, कोटक का ओपन एंड फंड है, जो फंड है जिसमें आप पैसा लगाएंगे और वो पैसा उन्हीं कंपनियों में लगेगा। आपका पैसा वैसे ही बढ़ेगा या गिरेगा जैसे नैस्डैक 100 में होता है। केवल इसके मुनाफे के टैक्स ट्रीटमेंट में अंतर है। पहले मिलने वाला जो आपको मुनाफा था उसको इंडेक्सेशन के बाद जो गेन्स रह जाता था उस पर टैक्स लगता था, अब पूरे गेन्स पे लगेगा। इससे बचने का या पुराने सहूलियत को प्राप्त करने का आपके पास एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। विदेशी ब्रोकर का अकाउंट खोल करके अगर आप किसी नैस्डैक 100 फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से मिलने वाला जो आपका गेन्स है उस पर इंडेक्सेशन की सुविधा आज भी मिलेगी, क्योंकि विदेशी और उन कंपनियों में भी आप सीधे तौर पे लगा सकते हैं क्योंकि वो एसेट्स है, उनका ट्रीटमेंट अलग है और उन पे ये वाले नियम लागू नहीं होते। ओके, और लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। भारतीय इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेशकों की रुचि लगातार बनी हुई है। मई के पहले 4 कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए देश के इक्विटी बाजारों में डाले। इससे पहले अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने इक्विटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक और मार्च में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Public sector lender Bank of India today reported a 115% jump in its consolidated profit after tax for the March quarter to 1,382.2 crore rupees, helped by a 1,717 crore rupees income from sale and revaluation of non-core assets. The bank's core net interest income rose 37% to 5,493 crore rupees on a 13% growth in advances. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us, Dhirendra. And before we close, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman asserts India has zero probability of going into recession. Foreign investors pump in nearly 11,000 crore into the Indian equity markets in just 4 sessions in May. And Bank of India's Q4 net profit more than doubles to 1,388 crore rupees. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.